हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू एक्साइटिंग वीडियो इन दिस चैनल। बिकॉज आज मैं एक ऐसा टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि बहुत सारे लोग को एक बार देखना चाहिए इन देयर लाइफ। एंड बेसिकली ये एक ऑफ टॉपिक रहेगा मेरे चैनल के हिसाब से, बट ये वाला सब्जेक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था बताने के लिए सबको। एंड आई विल बी शेयरिंग माई थॉट्स ऑन दिस। एंड recently while scrolling Twitter the last night, and I found a very useful tweet. You can see I am sharing my screen here. You can see here, and here the user who sent it, the name is Hassan Tour. ऐसा नहीं कि this is all you need to build a build a $1 million कंपनी इन 2025। बिकॉज मैंने सोचा ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। एंड बहुत सारा अभी AI का एरा भी चल रहा है एंड सब लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं। सो मैंने सोचा इसको थोड़ा लूप होल निकालते हैं एंड सबको बताते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं। एंड एक टूल के बारे में चलो डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। सो बेसिकली यहाँ पे वो 5 सेक्शन लिया है। एक होता है ऑटोमेशन, एक डिज़ाइन टूल, एंड द थर्ड इज राइटिंग असिस्टेंट, एंड also the fourth one is market research, and the fifth one is coding. Because मेरा व्यू मैं सेकंड में दूंगा एंड फास्ट में मैं इसी पहले ये ट्वीट को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो बेसिकली ये ट्वीट आपको कहना चाह रहा है कि आप अकेले बंदे यूजिंग दिस AI टूल लाइक ऑटोमेशंस, डिजाइन टूल्स, एंड खुद इसको यूज करके आके आप $1 मिलियन का कंपनी खड़ा कर सकते हो जो कि कंप्लीटली एलोन होगा। एंड आप खुद ही इसका ओनर होगे, फाउंडर होंगे, एंड यू जस्ट कंट्रोलिंग दिस टूल्स टू बिल्ड ए कंप्लीट startup here. And from the fast tool itself, in the automation you can see Hazen there, Zapier there, Calendly there, and Lindy AI there, and Raspel. So forget about this first, but let me tell you the story of the Hazen first, and Zapier and Calendly. मोस्टली हेजन हम लोग ऑटोमेशन में काउंट नहीं कर सकते। बेसिकली ये एक लाइक योर वॉइस टू टेक्स्ट टू वॉइस मॉड्यूल देता है। लाइक आप उसको टेक्स्ट देन इसको ये वॉइस को कन्वर्ट करता है इसको, एंड आप इसको कौन से भी ऑटोमेशन पे कि आप कोई वीडियो बना रहे हैं, इसको वॉइस वो देना नहीं चाहते, तो बेसिकली वो क्या करता है कि उसका वॉइस निकल कर आप जस्ट सिंक करते हो अपने माउथ को, देन ये अपने वीडियो के साथ अटैच कर देता है। तो सेकेंड वन इज जापियर। And the most important thing is here is OpenAI recently launched their agent builder now, and I think when OpenAI launched the agent builder, the many startups, many Twitter in the followers, the community in the Twitter, everyone shared like the Zapier and another automation platform like Make. They said the startup gonna be nil, and but I thought Zapier and the Mac both are way ahead from it now, and it's nothing gonna stop them now. But they are, I think Zapier recently they raised their money like few bucks. I don't know. I will attach the news here so you can see on that. And the second pyramid is design tool, and design tool is a most important thing in a startup. Like if you are doing something, the design shows your startup what it looks like to the audience and what it feels to the audience. Because and here he showed that one is Midjourney here and another Canva. Like Canva is my favorite one of the go-to tool in my what I am building, the like editing the thumbnail, editing to presentations, all the goes through my Canva. And I don't use Photoshop nowadays, but I think Photoshop is there is a long. So let's forget about that, but let's talk about the Midjourney. Midjourney around when Midjourney जब आया था इसका क्वालिटी वेरी हाई था। मैंने जब लाइक 2-3 years बैक में जब Midjourney आया था इसको सब लोग यूज कर रहे थे। लाइक अभी तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, बट आप Midjourney के बदले इडियोग्राम भी यूज कर सकते हो, लाइक जनरेटिंग योर लोगो, जनरेटिंग योर मॉकअप्स, समथिंग लाइक दैट। लाइक एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द सेम इन इडियोग्राम and lot cheaper also. And the third one is Gamma, because the presentation tools are very much important. Because Canva में आपको AI generated presentation नहीं मिलता है, but Canva में आप खुद जाके बहुत टेम्पलेट को ढूंढ के आप खुद का presentation बना सकते हो। But in the Gamma you just give a prompt and it will generate a full presentation. Also very good alternative to it, like
that is beautiful.ai, because that's also very good. And I in my college journey I was also using that for my all my classes PPTs, so it was good also. And Figma, everybody know that it's a UI design tool, but now in the coding section I will gonna tell you about a very good design tool, and you can skip the Figma here also. And the third party comes as writing assistant. Writing assistant very important, because you have to brainstorm your ideas, your thoughts, and your copies, like those like this ChatGPT, Grok, Claude will help you to find this टेक्स्ट टू लाइक यू कैन, तुम लोग ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो इसके ऊपर, एंड इसको आइडिया ले सकते हो, एंड क्या क्या करना है तुम्हारे स्टार्टअप के अंदर। और इफ तुम लोग एसईओ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो यहाँ पे ब्लॉग का आइडिया, कंटेंट का आइडिया सब यहाँ पे मिल सकता है। And I totally support it, because these are very much great tools, and depends on the use cases, so you can switch between different tools nowadays. And the next comes with market research. And market research, he added Gemini here and Perplexity here, because Perplexity is a AI powered search engine, and it can also give latest time data. But instead of Google, I will add the new AI mode here, and which you can see the screen here. And here just search something in the AI mode, in the basically the site the AI mode is there, just basically search it will work like Perplexity but more matured for Google, because it is powered by Google, and we know all the data and from the Google are very trusted and accurate data. So market research का अभी हो गया है। then आप परप्लेक्सिटी कुछ भी टूल ढूंढ सकते हो, एंड मैं यहाँ पे प्रीफर करूंगा कि परप्लेक्सिटी के साथ जाऊँ या गूगल का एआई वाला टूल। एंड मोस्टली मैं अवॉइड करता हूँ गूगल जेमिनी, बिकॉज अभी इसका एपीआई में जो नानो बानाना मॉडल आया था, एंड VO3 अभी जो रिसेंटली बहुत वायरल हुआ था, लाइक हर लोग अभी उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, लाइक it is so good, but I think best alternative are also there, like Claude hai, and also few alternatives are also there for this. And the most important thing is coding, and coding में few things यहाँ पे missing है। यहाँ पे only Claude code दिखा रहा है, but I think I will show you what Claude code is. You can see here basically in the terminal, it's just a basically terminal based coding. You have to have a pro subscription for this, and I have that. And just to let you know, you can access Claude code here in the terminal, and just don't worry about these tools now. But I gonna have I'm planning this masterclass in a masterclass playlist in my channel, so all the tutorials and all the detailed tutorials will gonna come in my channel. सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड मैं ट्राई करूंगा कि जितना डिटेल में हो सके उसका ऐसा वीडियो लाऊं जो आपको इजी रहेगा कि आप इसके ऊपर कंटिन्यू कर सकें, एंड एवरी टूल को आप जान सके कि कैसे मैं उसको प्रोसीड कर सकूं। एंड जो व्हिच आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट वाज द नेक्स्ट स्लाइड आई एम शोइंग इट टू यू नाउ। See that I have added in the coding section 2 more section here, like one is agentic ID, and I have included also database and also for the vibe coding, and जो मैं Figma के बारे में वहाँ पे बोल रहा था यहाँ पे उसको कवर करने वाला हूँ मैं। and in the coding section you can see here ID में मैंने डाला हूँ कर्सर क्या है, मतलब सब लोग को तो पता नहीं है कर्सर क्या है। इफ आप नॉन टेक्निकल पे हो एंड टेक्निकल पे भी हो, बहुत लोग को पता नहीं है कर्सर क्या होता है। एंड बिकॉज इतना भी मत सोचो उसके बारे में, जस्ट ये एक आईडी होता है VS कोड पे जैसा। इफ आप VS कोड में काम किए होगे देन आपको कर्सर भी पूरा सेम टू सेम लगा है, बट विद सम एक्स्ट्रा एडेड फीचर्स लाइक AI एजेंट्स एंड फ्यू मोर थिंग्स। एंड इसका भी मास्टर क्लास आ रहा है, डोंट वरी। इफ आप लोग बाद में देख रहे हो तो मेरा जस्ट चैनल पे जाओ एंड प्ले लिस्ट पे देखो, इफ इसका ट्यूटोरियल आ गया है तो इसको जरूर फॉलो करना मत भूलना। एंड ऑल्सो मैं वीडियो भी पोस्ट हो गया है, देन मैं इसको मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, आप बाद में उसको चेकआउट भी कर सकते हो। एंड इन द कोडिंग सेक्शन ऑल्सो वी हैव डाटाबेस, बिकॉज डाटाबेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ स्टार्टअप। एंड इफ यू आर बिल्डिंग एनीथिंग जस्ट लाइक ए टू डू ऐप, एंड यू नीड ऑल्सो ए डाटाबेस, बिकॉज डाटाबेस में हम लोग हमारा डाटा को हमारा पूरा डाटा को हम लोग वहाँ पे स्टोर करते हैं। लोगों को दिखा जो ट्रेंडिंग पे है वो है सुपरबेस। सुपरबेस एक
new startup by YC, but their brainstorm tool is Lovable for nowadays. एंड मैं लवेबल को बहुत ज़्यादा अभी यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज मैं जब भी कुछ कुछ देख रहा हूँ तो मुझे कुछ कुछ आइडिया खटकते हैं, एंड मैं डायरेक्टली उस आइडिया को लेकर डायरेक्टली क्लाउड को जाता हूँ, एंड क्लाउड पे मेरा आइडिया देके उसको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म रिसर्च करके मैं डायरेक्ट मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं लवेबल को जाऊँ एंड मेरा आइडिया को मेरे लाइव कैसे करूँ उसको दिखाऊँ. एंड डोंट वरी इफ यू आर न्यू टू दिस फील्ड, एंड मैं इसके ऊपर जरूर एक ट्यूटोरियल लाऊंगा, मास्टर क्लास आएगा मेरा इसी चैनल पे, एंड जाकर प्लेलिस्ट मेरा चेक कर सकते हो. इफ आप थोड़ा लेट पे देख रहे हो देन मेरा मास्टर क्लास इफ आ गया होगा, मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक मेरा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड नहीं मिला देन आप जरूर मेरा क्लास चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके मास्टर क्लास लॉन्ग बिल्ड का मास्टर क्लास मेरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पे जाके इसको चेकआउट जरूर कर सकते हैं. इफ नहीं आया है थोड़ा वेट कीजिए, मैं उसका वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ एंड जरूर इसी चैनल में भी वीडियो आएगा. तो ये था बेसिक ओवरव्यू ऑफ लाइक सिंगल पर्सन कैसे भी एडजस्ट करके थोड़ा पैसा जुगाड़ करके, बिकॉज एम्प्लॉय को हायर करना आजकल बहुत महंगा हो चुका है, एंड लाइक यूजिंग दिस AI tools like a single person can build anything, I think, and this is mostly a good combination of the two, and he designed it very well. And I think I will add I have added a few also details here, so you can follow to this and just save it this image for your references for futures if you are building some real software also. And I think I have covered everything for that video, and it got too long I guess, and इसी प्रकार का वीडियो मेरे चैनल पे आते रहेगा. एंड इफ इसी डोमेन में आप वेरी इंटरेस्टेड हो लाइक यूजिंग AI और AI स्टफ इन टेक्निकल डोमेन, सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो इफ यू फाउंड समथिंग इंटरेस्टिंग, एंड डू कमेंट एंड व्हाट शुड I work on in my next video. And I think I am a very beginner YouTuber as of now, but if you think any feedback you are seeing to improve my channel or something like that, so do let me know in the comment box. I can constructive feedback also. So thank you for watching. See you in the next video.